আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুয়াজ ফ্রম ওসাকা জাপান। আর আজকে আমি আমার কিছু বন্ধু বান্ধবের সাথে আলোচনা করতেছি যে আলোচনা না আর কি শুনতেছি যে অ্যাকচুয়ালি আমার প্রতি মাসে কত টাকা খরচ হয় জাপানে আর আমার বন্ধু বান্ধবের কত টাকা খরচ হয় মানে প্রতি মাসে জাপানে। তো আজকে আমার সাথে আছে হচ্ছে সাই গ্রীষ্মা। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান। তবে প্রবলেম হইতেছে ভাই ওরা হচ্ছে বাংলা বোঝে না, কারণ এরা হচ্ছে নেপালি। তো বাংলা কিছু কিছু বোঝে, কিছু কিছু বোঝে না, কিন্তু কথা বলতে পারে না বাংলায়। ওরা সম্ভবত দোনা গোদে হানাছে হিন্দি 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 से हाँ क्योंकि কথা বলবে হচ্ছে ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে। একটু কষ্ট করে বুঝে নিন, মানে কষ্ট করে বুঝে একটু নিন, কষ্ট করে বুঝে নিন। হ্যাঁ, যে অ্যাকচুয়ালি ও কি বলতে চাইতেছে মূলত হচ্ছে আমার কত টাকা খরচ হয় জাপানে আর ওদের কত টাকা খরচ হয়, সেটা আজকে ডিসকাস করব। আর এই পাশে আছে হচ্ছে আমার একটা বন্ধু বিবেক, ছিল আদো আদো আজ। আসসালামু আলাইকুম বল দাও। আসসালামু আলাইকুম। এটা দেখুন, তো আজকে সবার সাথে ডিসকাস করবো যে অ্যাকচুয়ালি কার জাপানে কত খরচ হয়। কারণ কি আমার ইউটিউবে প্রচুর পরিমাণে কোশ্চেন আসে যে ভাই জাপানে কি পরিমাণ খরচ হয়, তারপরে হচ্ছে জাপানে মানে যে কস্ট অফ জাপান যেটাকে বলে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভাই এই 2টা বছর যে আপনি জাপানে গিয়ে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাঙ্গুয়েজ করলেন, এর एक्सपीरियंस की 2 साल जापान में हम जो पढ़ रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। हाँ बताएंगे, हाँ ठीक है। আর কিছু কোশ্চেন আছে, কি কি যেন কোশ্চেন আমি ভুলে গেছি, সব কিছু মনে নাই। তবে আরেকটা কোশ্চেন আছে যে আমার কিছু বান্ধবীরা আর আমার কিছু বোনরা আমার প্রশ্ন করে যে ভাই জাপান মেয়েদের জন্য কেমন, বা অ্যাকচুয়ালি মেয়েরা জাপানে কি করে, বা ওদের জন্য সুযোগ সুবিধা কেমন। তো আজকে আমার সবার সাথে একটা মেয়ে আছে, মানে আমার বান্ধবী আছে, তো ও আজকে বলবে যে অ্যাকচুয়ালি तुमको ये भी बोलना पड़ेगा क्या जापान पे लड़की को लिए जापान कैसे होता है एक्चुअली, वो बहुत ही अंजन का आदो का हाँ सेफ्टी है और नहीं है, ऐसा कुछ भी बोलना पड़ेगा। ओके, हाँ ठीक है, क्वेश्चन हाँ। सिर्फ ओनली एक है, हाँ ठीक है। जो है तुम्हारा मतलब मैं जो हलाल खाना खाता हूँ हमको हाँ। थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है। हाँ। तुम लोग तो फुत्सु है ना, हाँ कुछ खाते हैं। हाँ, अब तुम लोगों को कितना खर्चा होता है जापान में, कभी हिसाब किया है नहीं किया है? किया है ना, अभी अभी तो कर लेते हैं ना, क्योंकि अपना कमाई है तो हिसाब करना पड़ेगा ना। अब कितना बचेगा? महीने तुम एज ए लड़की हाँ कितना कमाता हो महीने? महीने में हो ही जाता है 220 तक। 220 तक? हाँ, हो 2,20,000? हाँ, वही Oh my God, ये तो मैं भी नहीं कमा पाता हूँ। अब कितना काम करता हो? ओ तो मामा मामा समझ जाओगे ना, समझने वाले को इशारा। ओके ओके ओके, समझ रहे हैं ना। अब भाई तुम कितना कमाता हो? इसका तो शीर्षक लगा है ना। नंदी कितना कमाता हो? আর একটা কথা বলি ভাই, আমার বন্ধু मैं नहीं कमाता हूँ भाई। আর 190 রোকো রোকো, का বুঝতে পারে বলবে তো। ওকে। আর আমার বন্ধুর নাম হচ্ছে বিবেক। ও কিন্তু যারা হচ্ছে প্রশ্ন করেন আর কি অ্যাকচুয়ালি যে ভাই 2 বছর ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পরে কি অ্যাকচুয়ালি সুযোগ পাওয়া যায় কিনা, সুযোগ মানে হচ্ছে কি ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় মানে ট্রান্সফার হওয়া যায় কিনা। তো ও হচ্ছে সেই সুযোগ করছে 2 বছর ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ার পরে, এখন সে ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় চলে গেছে। তুমি কিतना कमाता हो भाई? बोल दो तो ज्यादा करके बोलो, नहीं तो लड़के के तो बेइज्जत हो जाएगा। बेइज्जत क्यों? जो कुछ क्यों मान रहा है? झुकी मान हाँ। 1,90,000 हाँ। 1,90,000 फिर भी इनकम उसका भाई। तो सेविंग हो ही जाता है ना, हमारा नहीं होता ना। ओके 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 ओके, सुनो आप मुझसे हाँ। कीमतीगा सुनने को नहीं दे पता है। हाँ यो दाई दो। बोलो तुमको कितना खर्चा होता है महीने में? 2,20,000 तो कमाते हो, खर्चा कितना होता है? अब सुनने में तो अच्छा लगेगा ना 2,20,000। अब खर्च कटा के बोलूंगी तो लेके रखा है क्या? हाँ हाँ हाँ। Oh my God। तो सुना देती हूँ, क्योंकि रेंट तो जाएगा ना 30,000, तो हाँ, नॉर्मली हाँ। सभी का जाएगा ना। हाँ। तो 30,000 उस पे गया तो 30,000 के घर का भाड़ा? हाँ कोठा भाड़ा तो चला गया ना। घर का भाड़ा, हाँ। अब फिर उसमें भी बंदे हम इतने बस बैठते हैं, शेयरिंग में भी 30,000 तक एक पर पर्सन का जाता है। शेयरिंग में भी 30,000? शेयरिंग में भी 30,000 जाता है। तो ठीक है, घर का भाड़ा तो 30,000। हाँ, तो गैस जितना भी कम करें, हम इतना काम करते हैं, इतना खाना वाना बनाने के टाइम तो नहीं होता है, फिर भी गैस बत्ती पानी करके 10,000 चला जाएगा 10,000 Normally, हाँ। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी पानी के लिए। ओके। नॉर्मली जाएगी, इससे भी ज्यादा भी जा सकता है। 40,000 हो गया। हाँ, तो अब हम खाना तो खाते हैं ना, अब घर पे बना के तो नहीं खा पाते, कभी कम्युनिटी से खरीदना पड़ता है, कभी इधर से उधर से करते। 35 से 40,000 उधर लग जाएगा, 30 से 35 और 40 लग जाएगा क्या खाना पे खाना पे मतलब हाँ। वो सब कुछ महीने का सब हाँ, महीने का। एवरेज सब कुछ हाँ, मिल के? एवरेज पे आ ही जाएगा। 30 से 40, हाँ ओके। हाँ। 30 पकड़ो। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस भी तो बनना पड़ेगा।
ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस उसमें आ जाएगा 3000, तो उसमें लग जाएगा 3000। अच्छा हाँ। तो भाई हिसाब तो पहले करो तो कितना हुआ है? क्योंकि ये 40 हो गया 40 और ये 60 65 30, 65 इस पे हो गया। 65 हाँ तो और ये आ गया फिर इंश्योरेंस हाँ 3000। नॉर्मल ये 70,000 तो इस पे आ गया है कि नहीं। अब हाँ। फोन का बिल वो भरना ही पड़ेगा, डाटा चलाना ही पड़ेगा, तो नॉर्मली 5000 इस पे आ जाएगा, तो 75,000 इधर चला गया। फोन बिल और डाटा हाँ, सब हाँ। मिलके हाँ अब हमने लिया है ना लोन उससे जापान सरकार से आईपैड के लिए पेडी पेडी से हाँ। उसका नॉर्मल 10,000 चला गया। 10,000 हाँ, हाँ। क्या खरीदा तुम? क्यों आईपैड खरीदा iPad और खरीदा उसके इसलिए। वो पेंसिल वगैरह वगैरह था ना वाला। हम तो फोन खरीदा हमको 5,000 आता है। हाँ तुमको 5,000 5,000 मेरे आता है। आईपैड का हाँ, ठीक है। 10,000 चला जाता है ना, हम्म, तो वो गया तो 85,000 उधर चला गया ना। तो अब महीने में तो एक ही कपड़े पहन नहीं सकते, कॉस्मेटिक वगैरह लगता है ना लड़की को, हाँ। सनस्क्रीन वगैरह उसमें चला जाता है 10,000। ओके ओके 95,000 उधर चला गया ना। 95,000 हाँ। अब यहाँ पे तो हम अब शेनमनगा को पढ़ेंगे, न्योंगोगा को पढ़ेंगे, दाइगा को पढ़ेंगे, ट्यूशन फी तो चाहिए, कुछ कटा उटा के करके नॉर्मली 50,000 तो रखना पड़ेगा ना। ट्यूशन फी के 90, लिए 100, 1,45,000 इधर चला गया। सब मिलके ट्यूशन फी हाँ, सब ट्यूशन सेव फी। करके खाना वाना सब कुछ वो करके हाँ। कितना गया 95, इधर 145 95 हुआ और 1 लाख हो गया 145 तो 145 हाँ 1,40,000 इतना ही चला गया। हम्म, तो अब ऐसे तो चल चल के तो नहीं जा सकता, ट्रेन पे तो जाना पड़ेगा काम वगैरह करने के लिए, तो उसमें 15,000 तो चला जाता है, हम्म, 160 तो 160 65 हो गया। अब कभी कभी तो हमें दोस्तों से बातें करना पड़ता है, खाते पीते हैं, और किसका बर्थडे आ जाता है, किसका क्या आ जाता है, उसमें बर्थडे तो- आ जाता है। हाँ 10,000 तो इतनी नॉर्मली खर्च हो ही जाता है ना। कभी कभी खैसा पे वो खासी वगैरह भी देना पड़ता है खुश करने के लिए, 300 वगैरह को लिए, तो ये हो गया 170 80 तक इधर चला गया, तो बचा कितना 90 100 40,000 भाई 2,20,000 40,000 मेरा वो सब कट गया भाई। हाँ ये तो माइनस में चला जाता है। मैं बची हूँ 40,000 पे। हाँ, कभी कभी तो दोस्त से लोन लेकर वही भरना पड़ता है ना महीने में। अब ये 40,000 मैं नेपाल भेजूंगी तो कितना जाएगा नेपाल पे, इतना माइनस में है ना ये, तो कितना जाएगा 20 से 25,000। अब सोचो, अब उतना 15-20 लाख लोन लेकर हम लोग ऐसे सोचते कि 1 वर्ष में सब लोन खत्म कर देंगे, होगा 2 साल में मैंने कुछ नहीं किया। नहीं 2 होता साल में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। लेकिन मेरा इतना तो खर्चा नहीं होता है मुझे लग रहा है। हाँ मेरा भी रूम रेंट 30,000, हाँ गैस बिल 10,000, हाँ खाने के लिए मैं अकेला खाता हूँ, हाँ। मुझे भी 25,000 तो लग लग ही जाता है। 25,000। हाँ इंश्योरेंस भी मेरा भी 3,000। हाँ फोन बिल तुम्हारा फोन भी बिल 1,000 मेरा मेरा वो मुरा मुरा क्या पेटी का बिल और जो फोन को जो फुटसुनो बिल है ना 10,000 तो लगेगा हाँ, दोनों को। वो 10,000 नहीं होता है मेरा, हाँ। 8,000 का तरह होता हाँ, है, 8,000। 5 और 33 हाँ 8,000 होता है। आईपैड का बिल मेरा नहीं है। हाँ हाँ शॉपिंग मेरे पास पापा ने 2 लुंगी भेजा है। शॉपिंग मेरा इतना पैसा नहीं लगता है, 10,000 नहीं लगता है शॉपिंग हाँ, मेरा। लड़की को लगता है ना ट्यूशन फी 50,000 है तो सही है, सही तो है। सबको लगेगा। ट्रेन ट्रेन फी भाड़ा 15,000 तो ट्रेन भाड़ा मुझे भी लगेगा भाई, हाँ। ट्रेन भाड़ा मुझे भी काम पे जाने के टाइम पे लगता है। ट्रेन हाँ, भाड़ा हाँ। 10,000 तो मुझे वो लग ही जाता है, 10,000 ज्यादा लगता है ट्रेन तो भाड़ा। तुम्हारा नॉर्मली 150 तो लगेगा ही ना। 150 खर्चा होता है हाँ हाँ 150 हो जाएगा हो क्योंकि जाएगा 150-60 तो हो ही जाएगा। नहीं मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियो देखा था इससे हाँ। पहले, जो एक्चुअली जापान पे किसको जो जो लोग वीडियो मेक करता है उन हाँ। लोगों को कितना खर्चा होता है हर हाँ। महीने में, हाँ तो उसको बारे में देखा। कोई 50,000 पे भी खर्चा दिखा दिया, हाँ कोई- ऐसा कोई- नहीं होता है ना। कोई 60,000 में भी दिखा दिया। हाँ नहीं होता है। फिर मैंने हिसाब किया लेकिन मुझसे नहीं होता है, मेरा हाँ। 80,000 लग जाता है। हाँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा तब भी मेरा तब भी 80,000 लग लगेगा। जाता है। हम्म, और ऊपर से ट्यूशन फी को तो पैसा वो- 50,000 हाँ। छोड़ के छोड़ के लगेगा। 50,000 छोड़ के 80,000 हो जाता है, लेकिन हाँ। बहुत देखा 50,000 पे देखा था, लेकिन मुझे नहीं वो पता कैसे है रह पाएगा कोई इंसान 50,000 में? गैस का बिल, पानी का बिल, खाना का बिल, मोबाइल का बिल, इंश्योरेंस, उतना वगैरह बिल बिल बिल। अब तो मैंने वो तो बोला ही नहीं ना, जो सैलरी से आता है ना पैसा, Tax। उसका टैक्स 40 भी नहीं बचता। ओ भाई तुमको कितना टैक्स काटेगा सैलरी आता है? जॉब जॉब करोगे ना, सुशु को जो जॉब भी उठाया है मेरा काटेगा 50 35 हाँ 35 35,000 काटेगा। कितना पैसा सैलरी तुम्हारा कितना होगा उधर पे?
190 तो बैठ 190 190 हाँ, 190 तो जाएंगे हो जाएगा तो जान के हो जाएगा तो 2,20,25,000 तो जाएगा। 20-25 तो वही जाएगा। उधर से 30 वो टैक्स के लिए मैं वो कर दूंगा ना जाएंगे हाँ, टैक्स के लिए जान के करोगे हाँ। ओवर टाइम करोगे तो टैक्स- वो टैक्स 190 इसका बचेगा। हाँ, जो उसमें भी है, फिर रूम रेंट जाएगा ना, तुम्हारा रूम रेंट कितना जाएगा 30,000 तो जाएगा ही। 30 तो जाएगा। 30 तो जाएगा अकेला रहेगा दोनों अकेला हाँ। 30 हाँ 30 तो से 140 1,40,000 इसको नहीं मेरा बचाएगा। तो 10,000 बचेगा भाई सभी सब करके इसका 10,000 यहाँ पे हम सिर्फ करके भी नहीं बचा पाएंगे ना। तो फिर क्या फायदा भाई? क्या फायदा जापान आने का? पर भी अब आ ही सकते हैं कुछ वो एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम बोलेंगे तब तुम लोग चले गए हो जापान में, अब हमें रोक रहे हो। क्योंकि उसका पैसा ज्यादा बचेगा। हाँ, हमसे तो उसको- ज्यादा ही तुमको बचेगा। तो ट्यूशन भी नहीं देना है। हाँ, वो तो 50,000 बचेगा ना। 50,000 तो हर महीने ऐसे ही बच जाता है हाँ, ना। घर में तो भेज सकते उसको हैं 1 लाख की तरह बच जाएगा। हाँ। 2 लाख कमाओगे तो 1 लाख बच जाएगा आसान से क्योंकि बच जाएगा। SSW में जो लड़कियां आती है ना, मेरा वो उन लोगों का भी- नॉर्मली सैलरी 1 लाख तो बचता है। क्या बोल दूं? 10,000 का वो भी तो घर से नहीं जो हाँ, SSW में आता है ना वो जो वो बोला तुम्हारा था कंपनी भरेगा ना। नहीं वो नहीं, बोला था नहीं, जो वो- बंदा वो वो- सिगरेट फिगरेट पीता है ना उन लोगों को हाँ, 10-15 उसका ज्यादा खर्चा होता है। अब सही है वो हम बात नहीं करता। पर भी वो SSW में आने वाले इंसान का उतना 1 लाख बच जाता है, तो नॉर्मली शिक्षक को करके 1 लाख तो बचा सकते हैं। इसे जब मतलब जो बंदा वर्किंग पे जाएगा उसको 1 लाख बचेगा तो बचेगा पक्का है। बचेगा 1 लाख तो बताना क्योंकि पड़ेगा अपने कंट्री में हम 10-15 हजार में जाकर कर लेते हैं, तो ये तो 1 लाख बचना भी जरूरी है। बहुत ही है। इसीलिए हार तो नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब बहुत खर्चा होता है भाई जापान हाँ। में। और जितना भी वो बोला है ना, जापान इतना सेफ कंट्री है वगैरह वगैरह, यहाँ का रूल्स और रेगुलेशन, इतना वो इन्फॉर्मेशन, उतना वो न्यूज़ वगैरह होता है ना, सब ये यहाँ के वो मामा के पास होते हैं। मैं नहीं बोलूंगी ना क्योंकि समझ में आ जाएगा। हाँ। जो मामा जी बोलते हैं उसके पास होते हैं, ये न्यूज़ बाहर नहीं जाता है। फिर भी वो इतना जितना हमने सोचा है ना न्यूज़ है ना, उतना ये सब सेफ कंट्री नहीं है ना। कितने सारे मरे हुए, कितने वो किडनैप हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने को कर देते हैं। फिर भी ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। दुनिया भर के भाई ऐसा होगा ही। हाँ, होगा ही, क्राइम वगैरह ये जितना वो बाहर है ना उतना तो नहीं है। वो तो होगा। अब- फिर भी 90% तो है। अब YouTube देख के तुम हाँ। कोई कंट्री को थोड़ी ना जज कर पाओ। जज तो नहीं कर पाओगे तो ना, अब क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे मेरा तो अच्छा ही तो बोलेंगे ना। अब जो लोग मेरा वीडियो देख रहा है अब हाँ। मैं इधर पे खुद कंटेंट बना के फिर डालूंगा जापान के बारे में हाँ। तो उन लोग तो वही देखेगा। वही देखेगा, वही उसी को मानेगा ना। वही सोचेगा। हम्म। ये ऐसा बात नहीं है ना। जो तो यहाँ पे आता behind- है मैं हर बात वीडियो पे बोलता हूँ बिहाइंड द सीन बोल Scene। के भी कुछ होता है भाई। होता है। इसलिए मेरा वीडियो देख के तुम लोग जापान के बारे में खेमिरो नाई हाँ, देखो खेमिरो नाई खेमे नाई देखो ठीक है मतलब वीडियो देखा क्यों एगोला मने करें ना যাই হোক अब तुम मुझे बताओ जो जापान पे तो लड़की जो तू आया है इधर पे हमारे घर पे तो बहुत लड़की है बहुत और लड़की। आसपास भी बहुत नेपाली है बांग्लादेशी है हम्म। बेतो है हाँ। फिर फिलिपाइनी है। हम्म। अब लड़के लोगों का जिंदगी जापान में कैसा होता है? तुम लोगों को तो पता है ना, हम लोग तो बता- दोस्त है ना। दोस्त तो है लेकिन अब बहुत- अब हम लड़के लोग को उतना भी वो नहीं उतना आसान नहीं है ना जापान पे रहना, ये वगैरह काम करना। और इंसान कैसे होते हैं जो जितना हम जापानीज को सोचते हैं ना उतना सब ई ही तो नहीं है ना, वरी तो भी है। और काम पे जाते हैं तब उन लोगों का ट्रीट हमें जो करते हैं ना ट्रीट, वो ट्रीट सभी जगह पे तो अच्छे नहीं होते। कुछ के वो हंसते हंसते चेहरे से तुम्हें सब कुछ ऐसा बातें बोल देंगे जो तुम्हारे अंदर ट्रिगर, फिजिकली तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग, पर तुम्हें मेंटली इतना टॉर्चर देते हैं। तब अकेले लेकिन रहना बहुत दिक्कत है। वो तो- पति के साथ रहो तो अच्छा है फिर यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं है ना जो हाँ। तुमको कोई हैरेस कर रहा है। हाँ, हेरेसमेंट तो वो मेंटली मैं बोल रहा हूँ जैसे हाँ। अब हर दुनिया के हर जगह पे अच्छा बुरा एकदम होता है ना। मैं बोलना चाहता हूँ जो जैसे जापान एज ए लड़की के लिए अच्छा मतलब कितना सेफ है। हाँ। जैसे तुम लोग रात पे भी काम करके घर हाँ, आता कर हो, सकते हो, रात पे कर काम सकते भी हो। जाता हो। हाँ। अब इधर पे एक करने के टाइम पे कोई हैरेसमेंट हुआ हुआ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो मैंने फील नहीं किया है। पर हर जगह पे वही तो नहीं होता ना, पूरा जापान ही तो सेफ नहीं है। पर हम जिधर काम कर रहे हैं हमारे एरिया है ये सेफ है। दाइताई हाँ। कुछ जगह है जैसे नाम्बा के जैसा जगह है उधर जाके कुछ वो हो भी कुछ सकता हो है। भी सकता है। और मगर वो कस्टम- लड़की के लिए दूसरे कंट्री से तो अच्छा है यहाँ पे जापान में ना, जापान ये तो में बहुत अच्छे है। मुझे भी लग रहा है हाँ। क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कोई लड़की को छेड़ने का। पैसा हो या ना हो पर लड़की के लिए बहुत अच्छा ही है। क्योंकि अच्छा। 90% हम सुरक्षित है, 10% तो जिधर भी मिल ही जाता है। ओ, हमारे दुनिया का- कंट्री में इंडिया उधर उधर जाओ
90% मारू होगा, 10% अच्छा होगा ना। अब वो छोड़ दो, अब खुद का कंट्री के लिए बुराई नहीं कर नहीं, सकता। हमारे कंट्री तो अच्छा है, फिर हाँ, नेपाल अच्छा तो है। अच्छा है। जो भी है भाई, अब तुम्हारा बात बताओ, क्या तुम क्या करोगे? आप शुशु को तो कर लोगे, शादी कर लेगा अब तुम तो जैसे क्या है ना, जैसे तुम शुशु को क्या हो, इसका बारे में कुछ बताओ। जैसे एक कौन सा अच्छा है तुम्हारे लिए? जैसे इधर आया जापान में, जैसे उधर पे भी तुम ऑनर्स करके आए हो ना, ऑनर्स करके तुम्हारा मर्जी होता तो, मतलब ऑनर्स करके तुम्हारा मर्जी होता तो तुम खुद SSW वीज़ा पे, नहीं तो डायरेक्ट वर्किंग वीज़ा पे आ सकते थे। लेकिन तुमने पहले लैंग्वेज पे आया, लैंग्वेज सीखा। अब तुम्हारे लिए मतलब कैसा लग रहा है? जैसा मेरा वो अच्छा होता, और अब लैंग्वेज सीख के अब मैं काम पे जा रहा हूँ, खुद का मर्जी से काम ढूंढ रहा हूँ, जो मतलब पसंद आ रहा है वही कर रहा हूँ। अब कौन सा अच्छा है तुम्हारे लिए? कौन मतलब कैसे फील हो रहा है तुमको? SSW से तो यही अच्छा है ना, SSW से ही अच्छा यही है। अच्छा है। जैसे जैसे लैंग्वेज भी है इधर, लैंग्वेज भी सीख गया, अब बात भी कर language सकते भी हो। सीख गया इधर, पैसा भी हो गया। पैसा तो हो ही जाता है ना। और SSW से भी अच्छा है, ये तो शिशु को करके बीच में डिपेंडेंट लेकर आ सकता है ना। कब करोगे शादी भाई? नहीं करूंगा शादी। नहीं शादी करो, करो, हमें बुलाओ, है ना। हमको कोई भी बुलाओ, लड़की- depend- और वो कार कोई खरीदेगा, हम लड़की आएंगे। आएगी तो डिपेंडेंट में आएगी तो आएगी, लेकिन शादी नहीं करूंगा। डिपेंड ये कैसा बात कैसे हुई? हो सकता है? पेपर मैरिज कर दूंगा, वो कमाएगी अपना करेगी, मैं अपना करूंगा। अच्छा, तुम इतने महान हो तो मुझे किसी नहीं। की जिंदगी बनाएगा, ये बीवी नहीं बनाएगा फिर। अच्छा, अब तुम क्या बोलना चाहते हो? बोलो, बांग्लादेशी को लिए कुछ मैसेज करो। जैसे मुझे भाई बहुत बहुत ज़्यादा मैसेज आता है यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे। भाई मैंने जैसे इंजीनियरिंग कर लिया, अब मैंने क्या बोलते हैं ऑनर्स कर लिया, अब मैंने क्या करूँ? मैं डायरेक्ट जॉब वीज़ा पे आऊँ और स्टूडेंट वीज़ा पे आऊँ। जैसे जॉब वीज़ा पे कोई आ सकता है तो अच्छा है, अच्छा है बहुत। डायरेक्ट आके काम करेगा, ये तो सही है। अब वो कोई मसला नहीं है उधर पे। लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है जॉब वीज़ा के आने के लिए, वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकता है ना इधर पे। आ सकता है। पर हमारे तरह नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने तो उतना पढ़ के नहीं आए ना इधर आके। अगर जापान में रहना है तो लैंग्वेज बहुत जितना ही आना जितना आना चाहिए, जापान अगर में तो- भाषा नहीं है तो हमें गधा की तरह काम कराएगा, कुकुर की तरह बिहेव करेगा, ऐसा जिंदगी हो जाएगा। तब आना है तो लैंग्वेज बना के N4 खुद तक की तो पढ़ना ही perfect- पड़ेगा। N4 तो करना ही, N4 तो जितना ही करना ही करके आना है। पड़ेगा। N4 करके नहीं तो जॉब भी उतना आसानी नहीं से नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। क्योंकि अभी तो हमारे को है ताची के लिए हम है, वो सेनपाई ताची वो काम लगा देगा। जब हम आए थे हमारे तो कौन थे? कोई भी नहीं था ना तब। हम कुत्ते की हालत हो जाएगा भाई। हाँ, तो लैंग्वेज यहाँ पे आना है तो लैंग्वेज भी होना चाहिए। माइंड मेकअप ऐसे करना चाहिए कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, पैसे बाद में हो जाएगा। मैं नेपाली में फिर सेच में कर दूं एक 4-5 साल में तो मेरा कुछ अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। नेपाली में सेच में कर दूं। नेपालको वतासी वकरमाइदिसो।私も全然わからない。 अभी 行きましょうか。 嘘。 ये वीडियो फिर मैंने तो अब अपलोड करूंगा एडिट करके, फिर वो तो तुम लोगों को जो बात है ना, वो तो फिर मुझे सबटाइटल वो देना मैं पड़ेगा। हाँ, सबटाइटल देना पड़ेगा। हिंदी में बोलता हूँ ना, नेपाली लैंग्वेज तुम नेपाली में बोल दो, मैं हिंदी में बस ट्रांसलेट कर दूंगी। वो फील नहीं आएगा ना। तो तुम नेपाली में बोल दो, मैं हिंदी में बोल दूंगी। क्या है? नेपाली में बताओ। होइन अलिकता एक्सपान्ड भएको छ। हो। अँ, ये बोल रहा है कि जब यहाँ जापान में यहाँ पे आया ना, तब नेपाल में तो वो इतना शाई था, इंडिपेंडेंट नहीं था, उतनी कॉन्फिडेंट नहीं था। जब जापान आया, जापान आके उसको काम की ज़रूरत हो गई तो नेपाल के सेंसे से कॉल करके पूछा, नेपाल के सेंसे ने बोला तो घर से निकल, इधर नेपाल उधर के का। सेंस से मतलब क्या? कंसल्टेंसी। हाँ, कंसल्टेंसी का सेंस है। हाँ। तो बोला तेरे आसपास में वो सुपा होता है, भट्टी बसल होता है, वो याकुनिकू वाला वो बिकता है ना, वो बसल होता है, वहाँ पे जाके कॉल कर पूछ। तो इसने हर जगह पे कॉल किया, पूछा। तो उतना अच्छा लैंग्वेज तो नहीं था, फिर भी उसने तुम्हारे पास काम है, मुझे काम चाहिए, ऐसे पूछा, बार बार पूछा। अगर इतना ही एफोर्ट, इतना ही कॉन्फिडेंस लगा के नेपाल में कुछ करते तो कुछ बन जाता ना। हाँ। पर वो कॉन्फिडेंट सही वहाँ पे- बनता है हाँ। भाई। तो वो नहीं हुआ। पर अब यहाँ आके जापान ने उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सिखा दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना सिखा दिया ये ना। तो भाई सही है हाँ। भाई। ये बना तो दिया। जापान का एक जापान- अच्छा वजह है जापान पे आओगे तो भाई मतलब जितना भी बुरा इंसान हो, जितना भी गंदा इंसान हो, ट्रैक पे चल जाएगा। तुमको ट्रैक पे चलना पड़ेगा, सीधा रास्ता पे चलना सिखा देगा जापान। ये तो सही है। और सब भी चलेगा भाई अब। मेरे तरह नाम मत लो ना। मेरे तरह बेहतरीन लड़का भाई अब सीधा रास्ता पे चल रहा है। रास्ते पे चल रहा है ना। चल रहा है। काम गा को हो जाएगा। फिर
और कभी कभी ऐसे हम बातें चीतें करने के लिए लेकिन बैठते स्टूडेंट हैं। वीसा पे जापान पे आने के मुझे एक ही दिक्कत लगता है भाई, वो है माइनिची हर दिन सुबह सुबह नींद से उठ के गक्को पे जाओ, जाओ गक्को से आके काम पे जाओ, एक या है भाई, या है मतलब फिर भी बहुत गंदा है। मैं तो जिंदगी में यही तो मजा है ना, जिधर मैं दुख है। माइनिची सुबह उठ के उधर मुझे उठाता है, हर रोज उठाता है, और उठाने के साथ साथ उसके ऊपर सबसे पहले उजर के ऊपर मैं गुस्सा हो जाता हूँ, क्यों उठाया तो मुझे, क्यों उठाया, फिर जाके पानी शानी पीता हूँ, फिर ठीक होता है, नहीं उठाया हाँ, तो उठाया, क्या, सही किया। डॉक्टर जाना पड़ेगा, यही है, ऐसा ही होता है। जो भी है भाई ब्রাদার, এই ছিল হচ্ছে আজকের ভিডিও জাপানের এক্সপিরিয়েন্স। ও শর্টকাট একটা মানে উত্তর দিয়ে দিই, शॉर्टकट बोलो। हाँ, जापान आने के बाद तुम लोगों का मतलब एक्सपीरियंस क्या है, कैसा है, जापान सही है और बुरा है? अब रह रहे हैं, जिंदगी बनाने के लिए आ चुके हैं, फ्यूचर यहीं पे सोच चुके हैं, तब कुछ नहीं बोलूंगी मैं तो। लेकिन मुझे जो लग रहा है हाँ। एक स्टूडेंट जापान पे आएगा, आने के बाद वो इधर पे 2 साल लैंग्वेज करेगा, हाँ फिर जाके सुसु करेगा। दूसरा सेनमन जाएगा। नहीं तो दायगा को पड़ेगा, हाँ तो फिर ऐसे करने के लिए अब लाइफ जो हो रहा है कैसे हो रहा है, मतलब ये क्या है, अच्छा है या बुरा है? हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत वो लगता था, मुझे यहाँ पे रहने के लिए मन ही नहीं करता था, क्यों आ गए मैं, सब नहीं हो रहा है जो मैं सोच रही थी, ऐसा नहीं होता है। हम जो सोचते हो तो नहीं होता है ना, फिर भी जब मेहनत करेंगे अपने अपने आप में हो जाएगा, लैंग्वेज वगैरह हो जाएगा, तो जितना हम सोच रहे हैं ना उतना तो नहीं, मीट तो नहीं होगा, पर फिर भी 90% हो ही जाएगा, तो अच्छा ही है ना। জাপান सही है। हाँ, जापान ঠিক ठीक আছে है। ভাই ব্রাদার, জাপানে যারা আসতে চাইতেছেন তারা আসেন, কারণ জাপান অনেক ভালো কান্ট্রি, অনেক সেফ অনেক কান্ট্রি। ভালো কান্ট্রি। এখন সমস্যা হইতেছে ভাই, সমস্যা নাই। প্রথম আপনি যখন কোথাও যাবেন তখন সমস্যা। সেটা সমস্যা হবেই, কারণ আপনি প্রথম যদি ধরেন বাংলাদেশের থেকে কোনো গ্রাম থেকে ক্যাপিটালে যান বা ঢাকাতে যান, তখন আপনার এরকম সমস্যা হবে। সমস্যা নাই। তো ঠিক সেই একই অবস্থা, সেম অবস্থা জাপানে। তো এই হচ্ছে কথা, আজকে জাপান সম্পর্কে এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দিলাম। তো আমার টাকা নেই, আমার টাকা নাই, আমার টাকা নাই, সবকিছু শেষে আমার টাকা নাই, ঠিক আমার আছে, টাকা নাই। এই হচ্ছে বড় কথা। যাই হোক, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু সুস্থ আলাইকুম ওয়া থাকুন। রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম। বাই ইনশাআল্লাহ। বাই। বাই বাই। বাই বাই।